So we will discuss about the electromagnetic spectrum. So as you know, सबने electromagnetic spectrum के बारे में पढ़ा होगा. Now here you have to understand, I was telling you in the previous class. So suppose I want to visualize anything, I'll have an image in every spectral field. I'll be able to see an image of a particular thing. Now suppose if I'm looking at humans, you know what X-rays में हम लोग कैसे दिखते हैं. We are seen as bones basically. गामा रेज में अलग विजन होगा, अल्ट्रावायलेट में अलग होगा, विजिबल पे जैसे हम लोग देखते हैं. So now how do we actually see? What are we seeing? So I had told you in the previous lecture also, there's a certain part which is being reflected. हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग reflectance के according we are seeing our vision. So reflectance जो है, if I measure the reflected wavelength, then every image will be having a different wavelength in the entire electromagnetic spectrum. पूरे spectrum में I will have a wavelength which is reflected and I am able to see that material. So suppose इसका मतलब क्या है? Suppose I am looking at water. So water में अगर if I try to visualize water in different wavelengths, then this is the kind of output. Reflectance इतना आता है. So this is the incident wavelength and this is the output. Reflectance इस तरह से log scale में करा है ताकि it is able, because it's very very less. So log में we are able to look at smaller values. So हम लोग log value लेके और फिर visualize कर रहे हैं. So clear water shows me something like this. Turbid water is something like this. So why is it actually essential? हम लोग क्यों use करते हैं, कहाँ use करते हैं? To be able to understand this, let's talk about satellite imaging first. So now we have, there's a huge line of remote sensing. रिमोट सेंसिंग मतलब रिमोटली किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, सेंस करना. रिमोटली मतलब फ्रॉम अ डिस्टेंस. सो सपोज आई हैव अ फील्ड हियर एंड आई हैव, लाइक आई वाज सेइंग, वेजिटेशन है, सेटलमेंट्स हैं, मे बी रिवर है, वाटर बॉडी है, मे बी एट सम पॉइंट देयर इज अ डेजर्ट, सो देयर आर सर्टेन कैक्टस एंड ऑल. इस तरह से कुछ वेजिटेशन. सो देयर इज अ सर्टेन लैंड यूज. नाउ लैंड यूज़ का क्या मतलब है? यू मस्ट हैव सीन टोपो शीट्स, जो कि बचपन में हम लोग यूज़ करते थे. व्हाट आर टोपो शीट्स? दे हैव लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स विच आर मैप्ड. सो इस तरह से लॉन्गिट्यूड है, इधर लैटिट्यूड है, और हम लोग ग्रिड्स में वी ट्राई टू फाइंड आउट. सो मे बी देयर इज अ टेम्पल हियर, हम लोग उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एग्जैक्टली बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लाइन्स गिवन. नाउ I am trying to visualize. Suppose I have a satellite image. So एक satellite है इधर which is taking values of the reflectance. So क्या होगा? दो तरह के होते हैं. You have to understand कैसे visualize होता है. So we have different kind of sensors. एक सेंसर होते हैं जो रिफ्लेक्टिव मोड में कैप्चर करते हैं एंड द लाइट एनर्जी और नेचुरल लाइट और इंसिडेंट लाइट इज यूज्ड. सो आई एम जस्ट कैप्चरिंग द रिफ्लेक्शन इन दैट सेंसर. एक होते हैं एमिसिव मोड. एमिसिव मोड मतलब जैसे कि जो ऑब्जेक्ट खुद सेल्फ ल्यूमिनस है. अब MRI, PET, हैज़ एनीबडी हर्ड ऑफ ऑल दीज टर्म्स? MRI किसी को पता है क्या होता है? Yes, anybody? Yes, you know. So this is magnetic resonance imaging. और PET क्या होता है? Positron emission transmission. So इसमें क्या होता है कि we are trying to capture an emissive mode. एक ऑब्जेक्ट है जो सेल्फ ल्यूमिनस है. PET में एक हम लोग जनरली कुछ पिलाते हैं विच पॉजिट्रॉन्स एमिट करता है, और हमारे जो टिश्यूज़ हैं, जैसे सपोज आई एम लुकिंग एट कैंसर कि कहाँ कहाँ है, तो कुछ टिश्यूज़ पे वो पर्टिकुलर जो लिक्विड में जो केमिकल्स होते हैं वो उस पे जाके दे हैव मोर अफिनिटी, चिपक जाते हैं. तो
it is visually clear. So when we discuss further on, you'll understand that कैसे कैसे अलग अलग तरह से acquisition होता है images का. But in satellites में क्या होता है? Satellite में you have a satellite here. So there may be satellites which are kind of emitting. LiDAR का नाम सुना है किसी ने? Anybody knows what LiDARs are? LiDAR क्या करते हैं? They are airplanes which emit lasers. So lasers are emitted. So I have a plane, maybe a plane is flying. एक plane type का है, क्या बन रहे हैं ये सब images बन जा रही हैं. Anyways, so there's a plane and it is flying through the ground. अब वो क्या करता है, नीचे एक बहुत सारी lasers वो throw कर रहा है और ऊपर उसकी reflectance आ रही है. So क्या होता है, you are kind of flowing through a particular terrain. एक terrain है नीचे, इस तरह से अलग अलग terrain है and I'm emitting certain एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को मैं एमिट कर रही हूँ और उसी का रिफ्लेक्शन आई एम मेजरिंग. सो आई नो किस वेवलेंथ में मैं एमिट कर रही हूँ. आई हैव सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसमें के अंदर आई कैन एमिट माई वेवलेंथ्स. सो अकॉर्डिंगली अगर मैं इन वेवलेंथ्स को एमिट करूँ एंड आई एम ट्राइंग टू कैप्चर द रिफ्लेक्टेंस, then this is the kind of pattern I get for different kind of land uses. So clear water है, wet soil, dry soil, then needle leaf vegetation, broad leaf vegetation. So मोटा मोटा अगर vegetation कहीं पे है तो इस तरह का pattern होगा. So reflectance के हिसाब से I am able to understand कि नीचे land use क्या है. So if I have acres and acres of land and maybe wildfires जैसे अभी हुई हैं US में. So US को wildfires में कैसे हम लोग we can't access till the fire is there, we'll not be able to access the place. So what is done, remotely उसको हम monitor करते हैं. We have satellite images of that place. We are trying to see पहले vegetation कितना था, तो कितने % of pixels हमें vegetation green दिखा रहे थे. Maybe after 1 day, after 2 days, कितना % pixels हमें vegetation अब दिखा रहे हैं. So I know how much vegetation has decreased, कितना loss हुआ है forest का. So are you able to understand this? So there are lots and lots of applications of satellite images that you have, and this is majorly used for land uses which can't be covered by mankind. जैसे अगर हम humanly करेंगे, कोई एक area को हमें measure कराना है, suppose अपनी university है, तो अपनी university का ही अगर हमें land use कराना है, exactly पता करना है कि कहाँ क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम आदमी लगाएंगे for survey, it will take months for us to complete because it's a huge area, 256 acres of land. But if I have a satellite images, if I fly a LiDAR की image जो data है वो IIT कानपुर के लिए पूरा मिलता है for research work. So anybody who wants to work on LiDAR, you'll be able to get the value data of LiDAR and you'll be able to work on that. So land use पूरा इतना accurate होता है, up to 0.2 meters accuracy you are able to do it. तो इनफैक्ट बिल्डिंग्स का भी जो है पूरा रिकन्स्ट्रक्शन, पीपल हैव यूज्ड लाइडार टू बी एबल टू रिकन्स्ट्रक्ट ताजमहल कि कहाँ कहाँ पहले से चेंज आया है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं एंड उसको कहाँ रेस्टोरेशन की ज़रूरत है. सो दे आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ इमेज प्रोसेसिंग इन दैट एरिया ऑल्सो. सो इज दिस क्लियर टू एवरीबडी नाउ? यस, लाइडार वर्क्स ऑन लेज़र की जो वेवलेंथ होती है. सो लेज़र क्या होता है, इट इज़ हार्मफुल. तो उसके लिए क्या होता है, अभी इंडियन जो गवर्नमेंट है इट इज़ नॉट गिविंग परमिशन बिकॉज क्या है कि एक सर्टेन हाइट के ऊपर अगर आप फ्लो करोगे तभी बिकॉज यू आर फायरिंग लेज़र्स, ऊपर से आप मतलब करोड़ों लेज़र फायर कर रहे हो, तो नीचे जितने भी लोग हैं उनके लिए हार्मफुल होगी. सो इसलिए यू हैव टू टेक परमिशन एंड दिस इज सर्टेन हाइट अबव विच यू कैन फ्लाई द लाइडार प्लेन. और उसमें सेंसर्स इनबिल्ट होते हैं. तो क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर लेज़र्स करते हो और उसके अलग अलग सेंसर्स हैं. सेंसर्स क्या होते हैं, हर तरह की रेंज के सेंसर्स हैं आपके पास. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हिसाब से आई हैव सो मेनी स्पेक्ट्रम्स. सो आई एम एबल टू कैप्चर अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी स्पेक्ट्रम दैट आई एम इंटरेस्टेड इन. जनरली लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट नोआ का मैं बता रही थी. सो अभी हम लोग बल्कि वेबसाइट भी देख सकते हैं, वी आर ऑनलाइन, सो वी हैव सर्टेन एडवांटेजेस. सो नोआ बेसिकली ये सैटेलाइट इमेजिंग के लिए लॉट्स ऑफ डेटा इज अवेलेबल. इफ़ आई लुक एट AVHIRR,
ये देखो ये साइट है, यू कैन एक्सप्लोर दिस एंड द डेटा इज जनरली अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड रिसर्च वर्क. अब इसमें AVHRR करके आई विल शो यू. सो दिस इज़ अ पर्टिकुलर सैटेलाइट ऑफ नोआ, जिसका मैंने बताया था पिछली बार कि बड़ा कोर्स रेजोल्यूशन है. कोर्स रेजोल्यूशन एक होता है स्पार्शियल रेजोल्यूशन, देखो ये है. सो AVHRR में द डेटा इज़ अवेलेबल एंड इसकी सारी डिटेल्स देखो. रेजोल्यूशन क्या है, 1 किलोमीटर. इसका क्या मतलब है कि 1 पिक्सल विल बी शोइंग मी 1.1 एक्चुअली 1.1 किलोमीटर बाय 1.1 किलोमीटर ऑन द एक्चुअल एरिया. तो हमारे ग्राउंड का जो 1.1 किलोमीटर बाय 1.1 किलोमीटर है वो उस इमेज में सिर्फ एक पिक्सल होगा. सो इफ़ आई एम लुकिंग एट अ बिग एरिया जहाँ पे मेरे को बस मोटा मोटा लैंड यूज़ करना है, देन इट विल वर्क. ओके, बट अदरवाइज if I need higher resolution I will have to go for paid ones. So Landsat अभी मैं दिखाऊंगी. So you can see the detail here और कैसे आप डेटा के लिए अप्लाई कर सकते हो. People have done a lot of projects. So in any case, if anybody is interested in a BTP project in this, you can go ahead and do it because the data you can download and you can work freely on it. Okay? So इस तरह की images आ जाती हैं. So you can अब change हमें detection करना है. So like I was saying, there's a very popular field of study called change detection. So change detection, हाँ बेटा. After reflection when laser light from land, after reflection when it goes upward, is there any instrument to receive that? Yes, there are sensors. यही तो मैं बता रही हूँ. Sensors हैं उस plane में, sensors हैं. और किस light किस यस उसके लिए बेटा पूरा फिजिक्स है. यस सो क्या होता है कि देखो अगर तुम एक ऑब्वियसली एक एयरप्लेन ऊपर से फ्लाई कर रहा है, ठीक है, अब उसके पास यहाँ से रिफ्लेक्ट करके वापस आ रहा है. सो कितना इसने ट्रैवल करा, इसकी एक डिफाइंड स्पीड होती है ना, एंड कितनी देर में ये वापस आ रहा है. अच्छा देखो अगर अज्यूम करो कि बहुत हाई सपोज एक माउंटेन है, तो क्या होगा, जल्दी वापस आ जाएगी. इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें और टाइम लगेगा वापस आने में, रिवर में और सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा. तो हम लोग क्या मॉडल करते हैं, टाइम मॉडल करते हैं कि कितना टाइम लग रहा है वापस आने में लेज़र को. यस, सो इफ़ आई एम एबल टू मॉडल द टाइम एक्यूरेटली देन आई विल बी एबल टू हैव एक आइडिया हो जाएगा कि ये जल्दी वापस आ रहा है. एंड ऐसा नहीं कि एक पल्स है, दे आर लैक्स ऑफ पल्सेस. तो जब इसका 3D डेटा देखते हो, इट इज़ लाइक अ 3D डेटा ऑफ पॉइंट क्लाउड कहते हैं इसको, जब हम लोग देखते हैं. तो ये पॉइंट क्लाउड पूरा जब होता है तो इट कैन रिक्रिएट द 3D कम्प्लीटली नीचे का टेरेन, है ना. तो वो टाइम मॉडलिंग के हिसाब से होता है कि कितनी जल्दी आ रहा है. एंड येस इसका फिजिक्स इन्वॉल्व है कि इसके लिए ऑलरेडी सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे, जिसके ऊपर IIT में ट्रेनिंग हुई थी जो मैंने अटेंड करी थी. तो उसमें दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स इन विच द स्पीड ऑफ यू कैन सेट द स्पीड ऑफ द व्हीकल एंड देन अकॉर्डिंगली द इंटायर टेरेन इज जनरेटेड ऑटोमेटिकली. राइट. सो इस तरह से हमारा ये एक लैंड यूज़ का एप्लीकेशन हो गया. अब हमारे पास जो नोआ सैटेलाइट है, लाइक आई वाज सेइंग, इसके पास 5 सेंसर्स होते हैं. सो हर सैटेलाइट में अपने अपने सेंसर्स होते हैं. उनके पास इस 3 रेंजेस के सेंसर्स होते हैं, 1 इन द विजिबल रेंज, 2 इन दिस रेंज एंड 2 इन दिस रेंज एज फार एज आई रिमेंबर. बाकी चेक कर लेना वेबसाइट पे. तो अब क्या हो गया कि आपने एक पर्टिकुलर एरिया को आपने ये 3 स्पेक्ट्रम का वापस वैल्यूज़ मेजर कर ली रिफ्लेक्टेंस के हिसाब से. एंड आई ड्रॉ अ डायग्राम. सो डायग्राम मैंने इस स्पेक्ट्रम का ड्रॉ करा, मैंने मैच करा कि विच इज़ द क्लोजेस्ट अकॉर्डिंग टू मी, दैट बिकम्स माई लैंड यूज़. राइट. सो दिस इज़ हाउ वी मेक द लैंड यूज़ मैप्स ऑफ वेरी बिग एरियाज विच कैन बी एक्सेस बाई ह्यूमन्स. सो सैटेलाइट इमेजिंग इसमें यूज़ हो रही है. चेंज डिटेक्शन में क्या होता है, जैसे अगर मैं एक पर्टिकुलर एरिया लिया, अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को देखना है कि गैंजेस का कैसे चेंज हुआ है पाथ, या कैसे नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं. तो व्हाट विल आई डू, आई विल टेक अ टाइम सीरीज डेटा. टाइम सीरीज डेटा में क्या होगा, डे 1 से मैंने सपोज इसको करा 1940s में लिया, एंड मंथली मैंने फिर डेटा लिया टिल 2020. सो मंथली डेटा मेरे पास है ऑफ सो मेनी इमेजेस. सो आई कीप ट्राइंग टू फाइंड आउट. अच्छा इसमें एक और चीज़ आएगी वो मैं बताती हूँ अभी.
बट इसको ऐसे समझो कि अभी मैंने एक लैंड यूज़ मैप बनाया, फिर उसी एरिया का दोबारा लैंड यूज़ मैप बनाया. सो आई कीप ट्राइंग टू फाइंड आउट. जैसे एक वाटर बॉडी थी, अब वो शुरू में मेरे को ये पॉइंट दिख रहा था, नेक्स्ट में धीरे धीरे मेरे को दिखा कि ये इतनी पतली हो गई या मे बी अपना कोर्स ही चेंज कर लिया है उसने. सो आई नो चेंज डिटेक्शन कैसे हो रहा है. गैंजेस का जनरली जो चेंज डिटेक्शन देखते हैं इसी तरह से करा जाता है, बिकॉज ह्यूमनली यू कैन मेजर सच प्लेसेस. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एनी क्वेश्चंस? अटेंडेंस बेटा देख लेंगे, अभी देखती हूँ मैं जिसका नहीं होगा. सो ओके, सो लैंड यूज़ मैप इस तरह से हो गया, टाइम सीरीज एनालिसिस हो गई. फिर उसके बाद जो है इसमें एक और जो प्रॉब्लम आती है, इसमें क्या आती है कि आई नीड टू नो द जियो लोकेशन ऑफ एवरी प्लेस वेरी एक्यूरेटली. इसका क्या मतलब है, मेरे पास तो इमेज है लेकिन इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है इस पर्टिकुलर, सपोज आई हैव अ माउंटेन हियर, तो उसका बेसिन का या कोई भी मेरे को पता चलना करना है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है. सो फॉर दैट आई यूज़ टोपो शीट्स. तो आइडिया क्या होता है, जब आप कोई भी एरिया को आप टोपो शीट से मैच करते हो, so I try to take the same area and the same topo sheet correspondingly. Then I find out some registration points. Registration मतलब क्या होता है, suppose I want to find out कि एक particular मंदिर है जो यहाँ पे है, इधर दिख रहा है, and एक मंदिर को तो बहुत डिफ़िकल्ट है आइडेंटिफाई करना जब तक कि 1.1 कोर्स रेजोल्यूशन से और पास वाला ना लो, लैंडसैट इमेजेस में पॉसिबल है, राइट? So suppose I find out the same point here and I'm sure that this point, इस वाले में मेरे को ये water body identify करी मैंने, और यहाँ पे उसी डेट का, suppose this topo sheet is dated 02/01/1940, कभी ऐसे बनी, सेम डेट की इमेज मैं लूँगी, इसमें डेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है. सो आपने उस डेट की, आपने सेम डेट की अवेलेबल है जो वो डाउनलोड कर लिया आपने. सो यू विल डाउनलोड द सेम इमेज on the same day the topo sheet was created, and you will try to find out certain points, at least 3 points you try to find out which will match your points here in the image. So generally हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक topo sheet है and उसमें river है, so river का starting point कहीं पे जहाँ पे वो turn हो रही हो, ऐसे ऐसे points को आप latitude longitude पे mark करोगे और उसी को आप map कर दोगे satellite image में. तो आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन हो गया. सपोज ये वाला पॉइंट मेरा ये वाला पॉइंट है, तो इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम A, B इधर मार्क कर देंगे. फिर दूसरा हमने एक और पॉइंट लिया जहाँ पे दूसरा टर्न है, उसको हमने यहाँ पे C, D मार्क कर दिया. ऐसे करके ये पूरी इमेज का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. जब हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाएंगे. सो दिस नीड्स टू बी डन बिफोर यू स्टार्ट डूइंग चेंज डिटेक्शन. इज इट क्लियर? So this is one application of remote sensing that you can have, and you need certain topo sheets. इसमें बहुत काम हो रहा है. So remote sensing is a huge field of which uses complete image processing part. Similarly, Landsat में अलग अलग तरह के, so you have microwaves and radio waves. Radio waves I was saying sonar use करते हैं. So अच्छा, सब लोग ने वो देखा होगा अल्ट्रासाउंड. So अल्ट्रासाउंड में भी इमेजिंग कैसे होती है, रेडियो वेव से होती है. So generally जो फीटस होता है, बेबी इनसाइड द मदर, तो उसमें क्या करते हैं, रेडियो वेव्स करते हैं ऊपर से फायर, एंड रेडियो वेव्स आर नॉट हार्मफुल. तो क्या होता है कि अगेन द सेम प्रिंसिपल, कितने टाइम में साउंड रिफ्लेक्ट कर रहा है. सो अगर बेबी है, सपोज ये फीटस है, तो यहाँ से कितनी देर में वापस आ रही है साउंड, उस हिसाब से वो इमेजिंग बनाता है. सो यू कैन सी दैट ब्लैक कलर एंड ब्लैक एंड ग्रेइश टाइप की इमेज दिखती है. अल्ट्रासाउंड्स देखे हैं किसी ने? हाँ. सो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली जनरेट. सो यू फायर रेडियो वेव्स एंड उनके टाइम, वापस कितने टाइम में वो वापस आ रहा है उसके हिसाब से इमेजिंग बनती है. सो नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट द स्पेक्ट्रल सिग्नेचर. आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू. आगे बढ़ते हैं. नाउ इमेज प्रोसेसिंग क्या है? सो इमेज प्रोसेसिंग, लाइक आई वाज सेइंग, दे आर वेरियस टर्म्स. एक कंप्यूटर विजन है, एक इमेज प्रोसेसिंग है. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज 3 लेवल्स. लो लेवल में क्या है, इनपुट इज इमेज, आउटपुट इज अगेन इमेज. हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉइज रिमूव कर रहे हैं, शार्पन कर रहे हैं, उसको विजुअली बेटर कर रहे हैं. इन मिड लेवल प्रोसेसिंग आई हैव एन इनपुट एज एन इमेज एंड एट्रीब्यूट्स आर माई आउटपुट. एट्रीब्यूट्स मतलब क्या हो गया, सपोज आई एम ट्राइंग टू हैव एन OCR
का एप्लीकेशन. OCR इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन. तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग OCR कर रहे हैं, सो आई नीड टू आइडेंटिफाई दीज शेप्स. सो व्हाट विल आई डू, आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट. इसको हम लोग, इसमें से हम लोग कुछ एट्रीब्यूट्स निकालेंगे. अब हम लोग एक सबसे सिंपल जो तरीका हो सकता है कि हम लोग एक स्टैंडर्ड इमेज, सपोज हमने ले लिया 64x64, उसमें हमने डिवाइड कर दिया और ये ब्लैक एंड वाइट, इसको बाइनरी इमेज बना दिया. अब फॉर 64x64 मेरे पास इतने नंबर ऑफ पिक्सेल्स हो गए. उन पिक्सल को हमने ऐसे नंबर कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके मेरे पास इतने सारी नंबरिंग हो गई. हर एक में जहाँ पे वो अल्फ़ाबेट है वहाँ पे उसको 1 दिखा दिया जहाँ पे वो अल्फ़ाबेट ड्रॉन है. सो सपोज हियर आई विल नो दैट दिस पिक्सल विल बी वाइट. इतना छोटा छोटा डिवाइड करेंगे कि ब्लैक एंड वाइट में मेरे पास सारे ये जितने भी पिक्सल्स है 1 2 3 4 5 ऐसे करके 64x64 जो भी वैल्यू होती है, आई विल हैव ईदर 0 0 0 1 कुछ भी इस तरह के वैल्यूज़ आ जाएंगी. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? बेटा समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो, बिकॉज ऑनलाइन में मेरे को ऐसे शक्लें तो दिख नहीं रही हैं, तो तुम लोग को पूछना पड़ेगा. एनीबडी हैज़ अ प्रॉब्लम? शुड आई कंटिन्यू? तो इसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग ने एक इमेज को डिवाइड कर दिया एंड आई हैव सर्टेन पिक्सेल्स. सो अगर एक बार दोबारा से अगर देखना है तो इस तरह से एक सिंगल लाइन इमेज है एंड आई हैव वेरी वेरी स्मॉल पिक्सेल्स और इनको नंबर कर दिया 1 2 3 4 5 ऐसे करके. हर पिक्सल की अपनी 0 वैल्यू होगी या 1 वैल्यू होगी. डू यू अंडरस्टैंड दिस? To make it simple, I suppose I have a 4x4 image. So 16 pixels है मेरे पास. So 0 1 2 3 करके 15 तक पिक्सेल्स होंगे. हर एक की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी. तो मैंने ये सारा डेटा स्टोर कर लिया. तो हम लोग कैसे स्टोर कर रहे हैं, इमेज को हम लोग एट्रीब्यूट्स के टर्म्स में स्टोर कर रहे हैं. हमने इसको एरे में कन्वर्ट कर लिया और एरे में हमारे पास 16 वैल्यूज़ हैं. आई हैव 16 वैल्यूज़ इन दैट एरे एंड आई हैव वैल्यूज़ ऑफ जीरोज़ एंड वंस. So I could store it as a 4x4 array of zeros and ones binary value. तो ये attribute की तरह store हो गया, right? Similarly B का हमने बना लिया, C का बना लिया एंड फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एग्जैक्ट मैचिंग करने की कोशिश करें. जो भी नया अल्फ़ाबेट आया हमने उसी फॉर्म में उसको उस शेप में कर दिया, 4x4 में उसको मैप करके एंड देन आई ट्राई टू मैच कि किस में सबसे ज़्यादा जीरोज़ वंस कहाँ मैच कर रहा है. जिस अल्फ़ाबेट से सबसे ज़्यादा मैच करेगा उसको हम कह देंगे ये वाला है, राइट? तो अभी हम लोग क्या करा, मिड लेवल प्रोसेसिंग में एट्रीब्यूट्स आर माय आउटपुट्स एंड इट इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट रिकग्निशन, सेगमेंटेशन ऑल्सो. वी विल सी दैट लेटर. हाई लेवल प्रोसेसिंग में एट्रीब्यूट्स एंड अंडरस्टैंडिंग. सो दिस इज सीन अंडरस्टैंडिंग. जैसे क्या होता है, ऑटोनॉमस आजकल व्हीकल्स चल रहे हैं. सो आई नीड टू अंडरस्टैंड द टेरेन. सो क्या होगा कि इमेजिंग आ रही है एंड आई एम ऑटोमेटिकली एबल टू असर्टेन कि अब आगे मेरे को कहाँ मोड़ना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे ब्रेक लगाना है, बिकॉज आई सी सम ट्रैफिक मूविंग एंड आई एम एबल टू मेक कॉन्शियस डिसीजंस लाइक एन इंटेलिजेंट पर्सन. दैट इज हाई लेवल प्रोसेसिंग. इज इट ओके? आर यू पीपल एबल टू हियर मी? हेलो, आर यू पीपल एबल टू हियर? यस मैम. अच्छा, क्लियर है बेटा? ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है? लो लेवल, मिड लेवल, हाई लेवल, एनी क्वेश्चंस? बेटा कुछ पूछना है तो पूछ लो, एनीबडी? ठीक है, तो मैं हाई लेवल. सो हाई लेवल में बेटा ऐसा है कि एट्रीब्यूट्स, अब हमने जो इससे एट्रीब्यूट्स निकाले उनको हम इनपुट करेंगे. सो आई एम ट्राइंग टू डेवलप एन इंटेलिजेंट सिस्टम, राइट? तो अभी हमने क्या करा कि अभी हमने एट्रीब्यूट्स जैसे इस तरह से निकाल लिए. अब हमने हाई लेवल प्रोसेसिंग में क्या है, हम अब रिकग्निशन कर रहे हैं.
तो अल्फ़ाबेट की recognition कर लिया हमने, that is high level processing. I have some new alphabet coming, I'm able to recognize it. I'm able to recognize a face. Then एक और जो जैसे एक पिक्चर है, suppose I have a picture of fruits here, ठीक है. सो एप्पल है, पेयर है, अब कुछ भी इस तरह के पाइनएप्पल है. सो क्या है कि आई एम एबल टू टेक द वैल्यूज़. तो हम लोग क्या करेंगे, एट्रीब्यूट्स. यहाँ पे क्या होगा कि हर फ्रूट के लिए हमें पता होगा कि ओके ये कलर के बेस्ड पे हम इसको चेंज कर देंगे, इसके एट्रीब्यूट्स निकाल लेंगे, शेप, कलर, टेक्सचर. सो मैंने एट्रीब्यूट्स निकाल लिए, कलर, शेप, टेक्सचर, साइज. ये सब चीज़ें हमने एट्रीब्यूट की तरह निकाल लिया. देन आई एम एबल टू डिस्टिंग्विश देम यूजिंग द हाई लेवल प्रोसेसिंग. सो एट्रीब्यूट्स इनपुट करें एंड देयर इज एन इंटेलिजेंट सपोर्ट सिस्टम. डिसीजन हम कोई दे रहे हैं. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, जैसे मैंने ऑटोमेटिक नेविगेशन है, गूगल ने एक कार बनाई थी, तो व्हाट इज़ इट डूइंग, आगे का ट्रैफिक देख के वो बताती है कि अच्छा अब ब्रेक लगाना है, आगे यहाँ पे टर्न करना है, यू हैव टू स्टॉप, देयर इज अ ट्रैफिक लाइट. सो दिस ऑटोनॉमस नेविगेशन हैपनिंग. आई एम अंडरस्टैंडिंग द सीन डायनेमिकली. चलते चलते मेरे को समझ में आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है, आगे मेरे को कहाँ चलना है, कहाँ रुकना है. सो अकॉर्डिंगली आई एम एबल टू डू take my decisions and do such activities. This is high level processing. Is it okay? अब uses क्या है? So uses हर बैंड के अपने अपने हैं. So we had seen electromagnetic spectrum में बहुत सारे brands हैं. गामा रे इमेजिंग कहाँ यूज़ होती है, न्यूक्लियर मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, एक्सरेज इन मेडिकल. अल्ट्रावायलेट जो है लिथोग्राफी, माइक्रोस्कोपी में यूज़ होता है. आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. विजिबल एंड इंफ्रारेड एंड एस्ट्रोनॉमी, रिमोट सेंसिंग, लाइक आई वाज सेइंग, माइक्रोवेव इन राडार. रडार्स पता है सबको क्या होते हैं? एनीबडी हैज़ एन आइडिया ऑफ राडार? रडार इज ऑल्सो लाइक लाइडार. लाइडार में क्या होता है, लेज़र फायर होती है. रडार में माइक्रोवेव बैंड के शूट होते हैं. सो दिस इज़ यूज्ड इंटेंसिवली इन गेटिंग, जैसे अगर आजकल देखा होगा सिविल इंजीनियर्स बहुत यूज़ करते हैं. एक कोई भी कमरा, जैसे अगर बहुत बड़ा कोई वो है, लाइक आई वाज सेइंग अबाउट ताजमहल. सो ताजमहल को अगर आपको करना है, सो रेस्टोरेशन करना है, सो दे आर मशीन्स विच फायर माइक्रोवेव, इस तरह से माइक्रोवेव्स फायर करती हैं. And they also try to capture the 3D point cloud, and they are able to recreate from that point cloud, the entire image is recreated, and this is used heavily for restoration work in architectural buildings. So जैसे कुतुब मीनार है, इन सबको एनालाइज करना बहुत मुश्किल है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं. सो व्हाट दे डू इज़ दे टेक अ दिस थिंग, एक इसका एक पूरा अवेलेबल है IIT में, अगर हम लोग कभी जा पाए, बिकॉज आई हैव शोन द प्रीवियस बैचेस प्रैक्टिकली ऑल्सो कैसे यूज़ करते हैं. सो IIT कानपुर में दे हैव दिस मशीन एंड दे शो यू कि कैसे कैप्चर करके भी दिखाते हैं पॉइंट क्लाउड, एंड यू आर एबल टू रिक्रिएट द इंटायर बिल्डिंग्स. सो राडार्स आर यूज्ड इन द रेडियो बैंड्स. देन रेडियो बैंड में MRI वगैरह अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. नाउ कमिंग टू हिस्ट्री ऑफ इमेज प्रोसेसिंग. सो दिस इज़ जस्ट फॉर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की स्टार्ट कैसे हुआ था. यू कैन रीड इन द बुक ऑल्सो. So a first picture, this was the first picture which was transmitted, and it was transmitted by a submarine cable between London and New York. So इसमें पहली बार digitally pictures को code करके transfer करा गया था as bits, and then they were reconstructed at the receiving end in the early 1920s. Then afterwards it improved. क्या करा, बस कुछ नहीं, number of levels increase हो गए. So 15 tones. 15 tones मतलब कितनी bits use हुई होंगी? Anybody can tell me? 4 bits. 2 to the power 4 is 16. So इन्होंने बाद में फिर 15 डिजिटल टोन का भेज पाए. सो दिस वाज इन अगेन लेट 1920s. 1960s में इट एक्चुअली स्टार्टेड सर्जिंग. सी आर बेसिकली हम लोग की कॉम्पिटिशनल कैपेबिलिटीज़ जब बढ़ी हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक्स बिहाइंड इट, व्हेन द कंप्यूटर्स बिकेम एफिशिएंट, then all these things started getting processing faster. So obviously दोनों का अपना अपना हाथ है, वही मूर्स लॉ से गवर्न हुए हैं हम लोग.
1970s में DIP स्टार्ट हुआ है. सो CAT scan was first taken in 1979. So I'll show you what CAT scans are, and today they are used everywhere. So सबसे पहले अभी इमेज क्वालिटी अगर इम्प्रूव करना है तो देखो इसमें नॉइज़ है. कैन यू सी देयर आर लॉट्स ऑफ पिगमेंट्स. इसमें ब्लैक एंड वाइट टाइप के डॉट्स दिख रहे हैं इस वाली इमेज में. कैन एवरीबडी सी दिस? कनेक्शन चल रहा है, तुम लोग को सुनाई दे रहा है? ओके. सो हियर द नॉइज इज रिमूव्ड एंड दिस इज अ वेरी क्लियर इमेज. सो नॉइज रिमूवल एक होगा. नॉइज इज एनीथिंग विच इज गार्बल्ड. यू नो डिजिटल सिग्नल्स कैसे होते हैं? जीरोज एंड वंस, वोल्टेज के टर्म्स में है. ज़रा सा फ्लक्चुएशन हुआ, 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया. सो आई कैन हैव नॉइज इंट्रोड्यूस्ड इन वेरियस फॉर्म्स. एक पूरा चैप्टर है नॉइज पे, हम लोग उसमें और बात करेंगे. बट अभी के लिए यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट कुछ भी जो भी कोर्स रेजोल्यूशन अगर ख़राब कर देता है इमेज को, दैट्स कॉल्ड नॉइज. सो आई कैन रिमूव इट यूजिंग इमेज प्रोसेसिंग. आई डोंट नीड टू कैप्चर द इमेज अगेन. हियर मेडिकल इमेजिंग में आजकल डिजिटल एक्सरेज यूज़ होते हैं. पहले क्या होता था कि फ़ोटो शीट होती थी, फ़ोटो सेंसिटिव शीट, मतलब उस पर यूज़ करते थे एंड देन प्रिंट आउट निकाल के, जैसे नेगेटिव्स का होता था वैसे देते थे. प्रिंट आउट नहीं निकलता था. आजकल डिजिटली प्रिंट आउट निकाल लेते हैं इवन इफ़ द प्रिंट दैट यूव टेकन, बिकॉज एक्सरेज आर हार्मफुल. एक बार आपको पास करी, दोबारा एक्सरे नहीं लेना चाहिए. फॉर इन केस इट कैन बी इम्प्रूव्ड, सो इट इज़ इम्प्रूव्ड विजुअली लाइक दिस ओनली यूजिंग इमेज प्रोसेसिंग. सो यू कैन स्टार्ट सीइंग ऑल द डिटेल्स हियर. एक बड़ी वॉश्ड आउट सी इमेज दिख रही है इधर. सो इसमें क्या है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया है. इट्स ऑल कम्प्लीटली टूवर्ड्स वाइट, 255 की तरफ सब पिक्सल्स भर रहे हैं. इसका हमने कॉन्ट्रास्ट चेंज करके कॉन्ट्रास्ट चेंज कर दिया. दिस कैन बी ऑल्सो डन इमेज यूजिंग इमेज प्रोसेसिंग. सो आई डोंट नीड टू वेस्ट माई टाइम कैप्चरिंग द इमेज अगेन. आई कैन जस्ट इन्हांस इट बिकॉज दीज काइंड ऑफ इमेजेस आर वेरी डिफिकल्ट टू, आप दोबारा से ऐसी हाइट पे फ्लाई नहीं करोगे, राइट? So that is why एक Hubble telescope is a very good example. It was launched in 1990 and it could take images using of very distant objects. But क्या हो गया, एक ख़राब मिरर था इसमें. So उसकी images सारी ऐसी garbled टाइप की आ रही थी. तो rather than changing this entire mirror, which was not feasible, and ये सारी images useless हो जाती. तो image processing use हुआ था to actually fix it. And once it was fixed, all these images were restored. जैसे होनी चाहिए थी वैसे दिखने लग गई थी. Then you have artistic effects. You've seen so many movies, so many आजकल तो इतने सारे animations and everything are so visually appealing. So all of them use image processing only. Now medical image processing is one complete field which is kind of dependent on image processing. And आजकल जो machines भी बनती हैं तो they need a lot of people who work in this field. So that is why it has a lot of scope. Here दिखाया हुआ है एक MRI scan. So उसको क्या करा है, take slice of MRI scan, canine heart है, dog का heart है, and इसकी boundaries निकाल के फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू डेंसिटी के हिसाब से इसको अलग अलग कलर्स भी दे सकते हैं. तो दिस समथिंग कॉल्ड फॉल्स कलरिंग, कलर मैप्स होते हैं. सो कलर मैप्स आर यूज्ड टू विजुअलाइज एंड सी. आगे और एग्जांपल्स देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा. नाउ सीटी स्कैन में क्या होता है, इमेज ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज इफ़ आई हैव एक 3D इमेज है, अगर मैं हर एंगल से एक इमेज को विजुअलाइज करूँ, सपोज आई हैव दिस, मैंने इधर से विजुअलाइज करा, इधर से विजुअलाइज करा, आई बी एबल टू गेट डिमेंशंस फॉर, हर तरह से मैं इधर से करूँगी तो मेरे को ये वाला क्रॉस सेक्शन मिल गया. फिर हर रे का देखो, ये वाली रे का मिल रहा है, ये वाली रे का मिल रहा है, ये वाली रे का मिल रहा है. सो इफ़ आई स्टार्ट लुकिंग एट दिस, राइट, अभी इन्होंने ऊपर वाला देखा तो क्या हुआ, 1 2 3 4 सब में ब्लॉक है, ये ऐसे दिख रहा है. फिर उसके बाद ये वाला ऐसे है. फिर इसके बाद इसको ऐसे विजुअलाइज करो. सो आई हैव 1 ब्लॉक हियर और बाकी जो है वो एम्प्टी है. ये वाला एम्प्टी है, ये वाला एम्प्टी है, इधर भी, इधर ये फुल होना चाहिए था, गलत बना हुआ है. फिर इधर से विजुअलाइज करा तो इधर फुल होगा, इधर एम्प्टी होगा, इधर एम्प्टी होगा, इधर फुल होगा. सो ऐसे करके, और इधर 4 फुल होंगे. सिमिलरली इधर से देखोगे तो 4 फुल आएंगे, इधर 1 फुल, 1 एम्प्टी, 1 एम्प्टी, 1 फुल.
सो यू नो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी एनालिसिस कर सकते हैं फॉर ऑल डायरेक्शंस. एक्सरेज आर एबल टू पेनिट्रेट, सो दैट इज़ वाई एक एक्सरे से हमें आगे तक का पूरा क्रॉस सेक्शन मिल जा रहा है. नाउ फ्रॉम दीज क्रॉस सेक्शंस आई शुड बी एबल टू recreate the entire image. That's the concept that you should know. Are you clear with this concept? Any problems? Okay. So MRI में क्या करते हैं? So I have a person here. अब इसमें हमने क्या करा, एक एक्सरे का रोटेटिंग ट्यूब दे दिया. ये ट्यूब रोटेट करता है ऐसे ऐसे चारों तरफ, एंड इट कीप्स फायरिंग एक्सरेज. और यहाँ पे एक फिक्स्ड एरे ऑफ डिटेक्टर्स है इसी के राइट ऑपोजिट. तो इसने जब यहाँ फायर करा तो उसने ये कैप्चर करा, ऐसे करके ये पूरा 360 डिग्री का व्यू पूरा कैप्चर कर लेगा एक जने का, और हर लाइन का ऐसे करके, क्योंकि ये रोटेट करता है. यू मस्ट हैव सीन द मशीन. किसी ने मशीन देखी है? MRI मशीन देखी है बेटा? सो या इट्स लाइक अ बिग मशीन. उसमें एक बड़ा सा सिलेंडर होता है. तो सिलेंडर में क्या है कि अलग अलग, अब इसको आगे करके फिर एक स्लाइस लिया, फिर आगे एक स्लाइस लिया, एक स्लाइस लिया, ऐसे करके पूरा जहाँ जिस एरिया का लेना है. सपोज आई एम लुकिंग एट द हेड ऑफ दिस पर्सन, सो आई विल टेक स्कैन्स एंड आई विल बी एबल टू रिक्रिएट अ 3D यूजिंग दीज इंटायर इमेजेस दैट आई हैव फ्रॉम द सेंसर्स. सो दैट्स द आइडिया. आई हैव डिफरेंट स्लाइसेस और इनको सबको 3D में कोलेट करके, सो दीज मशीन्स हैव दीज इनबिल्ट एल्गोरिथम्स, दे आर काइंड ऑफ हार्डवायर्ड, और वो अपने आप एक 3D प्रोड्यूस करके अलग अलग इमेजेस दे देते हैं. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. सो सिमिलरली ये स्पाइरली मूव करते हैं. पेट स्कैन्स भी होते हैं, PET. इसमें क्या होता है, MRI में तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द शेप और द ब्लड वेसल्स. हम लोग जो है ऑलरेडी प्रेजेंट, हम लोग उनका शेप स्टडी कर रहे हैं, टिश्यूज़ को स्टडी कर रहे हैं. बट हियर इन पेट स्कैन्स वी सी द फंक्शंस, कि हार्ट ठीक से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, माइंड में अल्जाइमर्स है, तो उस तरह की स्टडीज़ कि आपका फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट इज़ यूज्ड इन पेट स्कैन का ये आइडिया होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, दे यूज़ पॉजिट्रॉन्स, एक ट्रेसर इंजेक्ट करते हैं इन द बॉडी, या पीने को भी दे देते हैं आजकल. सो दीज आर काइंड ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज विच आर नॉट हार्मफुल फॉर योर बॉडी. सो आपने ट्रेसर पिया या इंजेक्ट करा, तो आपको फिर वो क्या होता है, इस तरह से वो ट्रेसर रेडियो एक्टिव होके एंड इट स्टार्ट्स. सो आई टेक एन एग्जांपल, जैसे अल्जाइमर्स में या कैंसर टिश्यूज़ हैं. सो कैंसर टिश्यूज़ में क्या होता है, ग्लूकोज को वो बहुत ज़्यादा सक करते हैं. सो इफ़ आई काइंड ऑफ हैव अ ट्रेसर जिसमें कि टिश्यूज़ सारे जो हैं, जहाँ जहाँ कैंसरस टिश्यूज़ होंगे वो ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेंगे वाले पार्ट को, दैट ट्रेसर को, एंड देन इट कैन बी सीन बाय इमेज कि ये वाला जो है पॉजिट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा चिपक रहा है, या यहाँ पे ज़्यादा एफिनिटी है, यहाँ पे ग्रोथ ऑफ सेल्स ज़्यादा है. इफ़ इट इज़ बियॉन्ड व्हाट वी एक्सपेक्ट देन नॉर्मल, देन वी डिटेक्ट कैंसर एंड देन वी से दैट आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए देते हैं. सो इस तरह से यू कैन सी दैट ट्रेसर्स, इनको हम कहते हैं कलर मैप्स, क्योंकि ये जो है एक्चुअली इस तरह के कलर नहीं दिख रहा होगा. दीज आर नॉट एक्चुअल कलर्स, बट टू डिस्टिंग्विश एंड टू विजुअली सी देम, हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कलर अलग अलग स्पेक्ट्रल लेंथ को दे देते हैं. जैसे मैंने कहा इस तरह से कि 0 to 20 इसको ग्रीन कलर दिखाना. आई एम जस्ट गिविंग एन इमेज. जैसे 0 to 255 हमारी पिक्सल वैल्यूज़ होंगी, तो हमने कह दिया 0 to 20 को इतना दिखाना, 20 to 100 को ब्लू दिखाना, 100 to 200 को रेड दिखाना, 200 प्लस को येलो दिखाना. सो दिस इज कॉल्ड अ कलर मैप. सो अ कलर मैपिंग इज गिवन एंड अकॉर्डिंगली आई कैन विजुअलाइज. सो आई नो विच इज़ what. अगर यहाँ पे मेरे को ज़्यादा ये रेड दिख रहा है, आई नो इट इज़ डेंजरस, सो आई विल गिव द इन्फ्रेंस अकॉर्डिंगली. सो दैट्स फॉर द मेडिकल पीपल टू अंडरस्टैंड. आर यू क्लियर विद दिस? सो GIS की मैंने बात करी थी. लैंडसैट इमेजेस में देखो इस तरह से है, जैसे 7 स्पेक्ट्रम होते हैं. आई वाज टेलिंग यू लैंडसैट में 7 सेंसर्स होते हैं. सो सेंसर्स में अलग अलग तरह से देखो, इधर ये वाटर बॉडी है. द वाटर बॉडी इज़ नॉट क्लियरली विजिबल इन 1, 2 and 3 बिकॉज उसमें उसका रिफ्लेक्टेंस इतना नहीं होता है जितना कि होना, मतलब बाकी सब में होता है. सो एज कम्पेयर टू दिस 1, 2, 3 यू विल बी एबल टू सी 4, 5 and 7 में ज़्यादा विजिबल है
the water body. So my water body, according to this thing I showed you, according to the spectral signature that I showed you, I can detect the water body. Is it clear? So ये हमारा कहते हैं geographical information systems. So GIS uses this. Then अब इसका क्या application हो सकता है? Can anybody tell me? Try to think or look at this image and what are we trying to do? So we are trying to estimate the population of a place. So night time lights, अगर हम वर्ल्ड की ले लेते हैं, रात में क्या होता है, सब लोग लाइट्स जलाते हैं जनरली. सो वी आर ट्राइंग टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन चेंज यूजिंग जस्ट द लाइट्स. सो हमने नाइट इमेजिंग करी, नाइट इमेज से हमने इमेजेस अक्वायर कर ली एंड आई ट्राई टू से दैट ओके जहाँ जहाँ लाइट है वहीं वहीं पॉपुलेशन है. तो अगर हमारे पास सेंसस है डेटा, सपोज आई हैव द सेंसस ऑफ 1940, ठीक है, उसका मेरे को पता है कि नंबर ऑफ ब्राइट पिक्सेल्स, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, सपोज इट वाज 100 पिक्सेल्स एंड द पॉपुलेशन वाज मे बी 10 मिलियन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री. अब 2020 में अगर मेरे पास सपोज 400 पिक्सेल्स हैं, सो आई विल से द पॉपुलेशन इज 4 times 40 मिलियन. सो इस तरह से रफ एस्टिमेशंस कैन बी डन. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बेटा आवाज़ आ रही है कि नहीं? हाँ ठीक है, ओके. सो नाउ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. हम लोग के यहाँ क्या है, ह्यूमन पावर बहुत है, बट जनरली बाहर एक तो माइन्यूटली तो यहाँ पे भी हम लोग नहीं देख सकते, बट अपने यहाँ तब भी लेबर बहुत अवेलेबल है. बाहर लेबर बहुत एक्सपेंसिव है. सो यू ट्राई टू ऑटोमेट एज मैनी थिंग्स एज पॉसिबल विदाउट मच ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन. सो मशीन्स को आपने जॉब दे दिया. अब इसमें क्या हो रहा है, पीसीबी को आप चेक कर रहे हो. पीसीबी एज इट इज़ ह्यूमन भी अगर करेगा तो इतने माइन्यूट होते हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सी इफ़ कोई आईसी मिसिंग है, कोई कैपेसिटर मिसिंग है. सो यू एवरीबडी हैज़ सीन पीसीबीज, सबने देखे होंगे, मदरबोर्ड देखा होगा. तो उसमें क्या होता है, कोई भी छोटा सा पार्ट अगर मिसिंग है तो अगर इमेज प्रोसेसिंग से हमने बता दिया कि दिस इज़ द स्टैंडर्ड दैट आई एम लुकिंग एट, कुछ भी मिसिंग होगा इट विल फ्लैग एंड दैट पीस विल बी रिमूव्ड. सिमिलरली अगर कोई ब्लिस्टर है, ब्लिस्टर मतलब ये जो दवाइयों का पैक है, इसको ब्लिस्टर कहते हैं. कोई भी दवाई गलती से नहीं फिल हुई, सो दैट विल बी रिमूव्ड पैकेजिंग में जाने से पहले. अगर कोई बॉटल है जिसमें लिक्विड की कम है, सो ऑटोमेटिकली फिल हो रही है, हो सकता है नहीं फिल हो पाई, ख़त्म हो गया उस टाइम पे जो मशीन में जिसमें डाल रहा था फॉर वट एवर रीजन्स, सो दिस बॉटल विल बी रिमूव्ड बिफोर इट इज़ सेंट टू द मार्केट. ये एक ऑप्टिकल लेंस है. दिस इज़ फॉर नंबर ऑफ बबल्स. क्या होता है, नंबर ऑफ बबल्स इन सपोज प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक में जितने बबल्स होंगे उतना वो आसानी से टूटेगा. तो एक सर्टेन लिमिट होती है कि ओके दिस मच इज़ अलाउड, उसके बियॉन्ड जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली हटा दिया जाएगा. सिमिलरली कॉर्नफ्लेक्स की इमेजेस भी दी जाती हैं. अगर एक पर्टिकुलर ज़्यादा ब्लैक कलर का कुछ एक स्कैब टाइप का आ रहा है तो उसको फेंक दिया जाएगा उस बैच को. ये ऑप्थोमोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं जो लेंसेज में आपका कैटरैक्ट वगैरह के लेंसेज होते हैं जो डलते हैं, सो विच इज़ नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, बट हियर यू कैन ईजिली सी दैट देयर इज़ अ बबल हियर, सो इट विल बी डिस्कार्डेड बिफोर इट इज़ यूज्ड ऑन अ पर्सन. So that is why industrial vision systems are very very efficient and are used in all the industries practically. PCB inspection मैंने बताया. Law enforcement. Now let's do an exercise here. अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा नंबर प्लेट एक्सट्रैक्ट करने की, सिर्फ अभी हम लोग इतना कोशिश करेंगे कि एक इमेज में नंबर प्लेट एक्सट्रैक्ट कर पाएँ. सो लेट्स गो टू योर गूगल प्लेट कोलैब्स. कोशिश करो, गूगल कोलैब सबके पास है? आप सबने कर लिया है कि नहीं बेटा? हैज़ एवरीबडी? हो गया, ठीक है. तो अपना अपना खोलो. ओपन इट, आई विल ऑल्सो ओपन इट. ये टाइप्स ऑफ इमेज सबने देख लिया था खोल के?
इसका मैंने कल लेक्चर डाला है, सो दैट लास्ट लेक्चर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस थी, आई डिडंट वांट टू मिस दैट. अब अपने आप एक तो ये काम करो, लेट्स सी हाउ मच डू यू पीपल नो. ट्राई टू क्रिएट अ वाइट इमेज, अ कंप्लीट वाइट इमेज ऑफ 200 by 300 साइज. क्रिएट करो पहले तो. लेट मी सी, 200 by 300 साइज का कंप्लीट वाइट इमेज, या कंप्लीट ब्लैक इमेज करो. ब्लैक वाइट तो दिखेगी भी नहीं. ब्लैक इमेज फॉर्म करो. कैन यू डू दिस? कितने लोग कर पाएंगे? इज माई वॉइस क्लियर? वारुण तिवारी कह रहा है वॉइस इज कमिंग इन बिट्स टू मी. पता नहीं बेटा बाकी सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं? Net seems to be working fine. Are you able to hear? Yes, ma'am. हाँ, तो इमेज कोई बना पाएगा ब्लैक इमेज 200 by 300 साइज की? चलो अच्छा, इसको मैं एक्सरसाइज की तरह छोड़ती हूँ, बाकी करना. नाउ आई विल शेयर एन इमेज विद यू. ओके, लेट मी शेयर एन इमेज विद यू एंड लेट्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट अ सर्टेन. लेना सबके पास है ना? लेना आई हैड शेयर्ड. हाँ, तो ठीक है. लेना में ही अब ये कोशिश करो, लेट्स ट्राई एन एक रीजन ऑफ इंटरेस्ट होता है. रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ? कहाँ कौन से एरिया को मैं देखना चाहती हूँ. सो इन द रीजन ऑफ इंटरेस्ट, सपोज आई वांट टू लुक एट द आई. कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? लेट्स सी दिस. सब लोग अपना अपना रन करो बेटा. खुल गया सबका? ओके. अच्छा, अब इसमें जो है ट्राई टू यूज plt डॉट सो हियर यू विल सी. ये ऐसा क्यों दिख रहा है, किसी को पता है? हाँ, इसका मतलब कल का लेक्चर नहीं सुना. सो आई हैड एक्सप्लेन दिस. क्या होता है, ओपन सीवी में यू यूज द BGR फॉर्मेट. मैंने दिखाया था BGR फॉर्मेट क्या होता है. यू रिमेंबर BGR फॉर्मेट? BGR फॉर्मेट में क्या हुआ, फर्स्ट 2 पिक्सेल्स ब्लू के, अगर हेक्साडेसिमल में बात कर रहे हैं तो, देन नेक्स्ट टू ग्रीन के, देन नेक्स्ट टू रेड के. सो अगर ये ब्लू है तो FF0000, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू दिखेगा. नाउ ओपन सीवी जो है इट यूजेस BGR फॉर्मेट, बट PLT कौन सा फॉर्मेट यूज़ करता है, RGB फॉर्मेट. तो अगर हम उसको RGB फॉर्मेट में देखने की कोशिश करेंगे तो इसलिए ये ऐसे दिखेगा. सो कल वाला एक बार देख लेना. इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको बस ऐसे कर दिया, इसको इधर कॉपी कर लेती हूँ. अगर इसको विजुअली ऐसे देखना है तो इसको कर दो
RGB A, BGR to RGB. आप देखो तो नाउ इट इज करेक्ट. कैन एवरीबडी सी दिस? चेंज हो गया. हाँ, तो क्या करा हम लोग ने, पहले हमने जब A में लिया, सो आई नो ओपन CV रीड्स इन RGB BGR फॉर्मेट. आई जस्ट सिंपली चेंज इट टू द RGB फॉर्मेट. एंड हमने ये इनबिल्ट एक कमांड होता है cvt color. दिस you'll have to remember. और आ भी जाएगा. फर्स्ट पैरामीटर इज द नेम ऑफ द इमेज दैट यू वांट टू कन्वर्ट. सेकंड, हमें क्या चीज़ चेंज करनी है. अगर हमें ग्रे में करना है तो टू ग्रे कर देंगे. इस तरह के बहुत सारे इसके फ्लैग्स हैं जो यू कैन यूज़. एंड देन व्हेन आई सी दिस इमेज, देखो प्लॉट में फ़ायदा क्या होता है, आई एम एबल टू सी द वैल्यूज़. सो यू कैन सी, अब ये हमारी क्या थी, रोज थी, ये हमारे कॉलम्स थे. सो 0,0 क्या होगा, दिस पॉइंट. यू कैन सी 0, 100, तो 100 ये हमारी 100th रो है, ये हमारे 200th रो है. सो वी जनरली प्रेफर PLT whenever we want to extract certain areas, क्योंकि हमें पिक्सेल्स का अंदाज़ा लगने लगता है. कैन एनीबडी टेल मी कि ये अगर हमें एरिया सपोज आई का ये वाला चाहिए है, या ये तो मिडिल में है, ये वाला आई चाहिए मेरे को, तो रो क्या होगी, कहाँ से कहाँ तक होगी. दिस वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 250 या 260 के आसपास होगी. दिख रहा है ये सबको. आई कम डाउन हियर एंड आई ट्राई टू सी कि आई कहाँ से जा रही है. तो ये देखो इधर से गए हम लोग, तो ये करीब 260 के आसपास ये इसकी इधर से आ रहा है. एंड ये पॉइंट क्या होगा, कॉलम में अगर देखेंगे, कॉलम में 310 के आसपास या कुछ इस तरह से आएगा. सो ट्राई टू एक्सट्रैक्ट. सपोज आई से लेना RGB को लिया हमने, एंड इसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. सो नंबर ऑफ, पहले हमें क्या देना है, रोज को देना है. सो रोज विल बी हियर. सो लेट्स से 260 या 250 और ये इसको लगते हैं 280, 240 टू 280 कर देते हैं. सो देखो इसमें कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. फर्स्ट टाइम गिविंग, जैसे पाइथन में करते हैं, ये एक्सट्रैक्शन है. नंबर कौन सी रोज़ चाहिए हमें और फिर कौन से कॉलम्स चाहिए. तो रोज़ हमें चाहिए 240 टू 280 रोज़ हम ले रहे हैं. कॉलम्स हम लोग ले रहे हैं 310 से लेके 350. लेट्स ट्राई दिस. फिर चेंज कर सकते हैं. और इसको हमने कर दिया EYEI कर दिया. Then let's see this image. So you can see image आ गई. Can everybody see this? Yes, ma'am. तो आई है, और हम इसको और नीचे कर सकते थे. अभी हम इसको और 240 की जगह हम 250 भी कर सकते थे, और क्लोज हो गया. यस. सो दिस इज हाउ यू कैन, सो दिस इज माई रीजन ऑफ इंटरेस्ट. इस तरह से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, एक इमेज मैं पोस्ट करूँगी, अभी शेयर कर रही हूँ ऑन द ड्राइव, क्लासरूम में डाल दे रही हूँ. एंड यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द प्लेट, उसमें प्लेट या लाइसेंस प्लेट जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना है. सो
कार नंबर प्लेट है, आई जस्ट शेयर इट विद यू. Try to extract the first I तब तक. इसको बेटा डाउनलोड करो एंड देन शेयर योर स्क्रीन ऑल्सो. एनीबडी जो कर लेगा इसको निकालो, देखो, अभी ट्राई करो. ट्राई टू अपलोड इट, ओपन इट एंड ट्राई टू एक्सट्रैक्ट ओनली द नंबर प्लेट. लेट मी सी यू डू इट. Is everybody trying this? इमेज बेटा खुल रहा है सबका? यस, इस तरह से आ रहा है. इज एवरीबडी एबल टू डू दिस? हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है बेटा? आवाज सुनाई दे रही है? तो पता ही नहीं चलता है, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो तो पता नहीं चलता है. डूइंग ओके.
एनीबडी हु हैज़ अ क्वेरी पूछ लो.